RS Agrawal, question number 28 I'm starting as एक का डाउट एक स्टूडेंट का डाउट है. So I'm starting from question number 28. Everyone please everyone mute yourself. Mute your device everyone. Mute your device. Now see question number 28 RS Agrawal, okay? So the question is I equals to cos cube x. Now how to integrate cos cube x? Note down everyone. सबसे पहला चीज cos cube x को हम लिखेंगे cos x into cos square x. Then I'll write cos square x as 1 minus sin square x. See, we can write sin square x as sin x का whole square. All right, everyone. We can write sin square x as sin x का whole square, and then we can substitute sin x with t. All right, everyone. Because ddx of sin x is equal to how much? Cos x. Let us differentiate both the sides with respect to x. You get cos x dt by t equals to dt by dx, and dx equals to 1 by cos x dt. Okay, everyone. Now let us come back to the integrate part, where we find that sin x has been replaced with t. So this becomes 1 minus t square. At the place of dx, I will replace 1 by cos x. Okay, so cos x gets cancelled. As a result, we find that we have 1 minus t square dt left. Let us separate the integrate and integrate the terms. Integration of 1 dt is t. Integration of t square is t cube divided by 3. और फाइनली हम लोग को प्लस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है? और जहां पे t है, t के जगह पे हम लोग sin x रिप्लेस कर देंगे. After integration is over. So I become sin x minus sin cube x divided by 3 plus c. This is your answer. Now I know that इस तरीके से करने से आंसर शायद बुक में मैच नहीं करेगा, बिकॉज बुक में आंसर किसी और फॉर्म में दिया हुआ है. Okay, now I'll explain you the other method also, जिससे बुक का आंसर मैच करता है. This is one method. You have one more method where you don't have to substitute. जैसे मैंने यहाँ पे substitute किया, तो उस मेथड में substitute नहीं करना है. एक बार कॉपी करो, मैं बता रहा हूँ दूसरा मेथड. नहीं, क्यों? ठीक है, कॉपी करो, कॉपी अच्छे से अभी क्लास एक बंद करो, बाद में देखेंगे. Shall I run now, everyone? Erase करूँ मैं? Now see the alternative way, everyone. यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों है बताओ, तो इस सम को इंटीग्रेट करना प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज we cannot write this as cos x whole cube and apply the formula of x to the power n. I repeat once again, you cannot apply x to the power n का formula. Why? Because cos x को अगर हम assume करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? Minus sin x. Now minus sin x is not a constant, it is a variable, so that's why you cannot assume cos x as t. Okay, everyone? So that's why you cannot apply x to the power n plus 1. So my objective is to reduce the power and express it, this particular function, into angular multiple form. How? The formula of cos 3 is 4 cos cube
minus 3 cos A. So what will be the formula of cos cube A? It is cos 3A plus 3 cos A, whole thing divided by 4. Alright everyone? अगर cos 3A का ये फॉर्मूला है तो फिर cos cube A का फॉर्मूला क्या होगा? cos 3A plus 3 cos A divided by 4. अब हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से cos cube x की जगह पे cos 3x plus 3 cos x whole thing divided by 4 replace करते हैं. Okay, now let us split. So we will get 1 by 4 cos 3x dx plus 3 by 4 integration of cos x dx. Alright everyone? What is integration of cos 3x? It is sin 3x into 1 by 3. Are you understanding how 1 by 3? Because जिस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेशन में अज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना होता है. समझ में आया? तो मैंने 3x को अज्यूम किया अगर तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 और उसका रेसिप्रोकल 1 by 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Cos x का integration is sin x. Now just check. Now this answer is matching with the answer given in the book. But जो पहले वाला आंसर था वो भी करेक्ट है और इस तरीके से भी करेक्ट है. So everyone copy down first. And if you have any confusion, you can ask. कोई भी अगर चीज कुछ पूछना है regarding the sum number 28, you can ask. Now 28 के बाद नेक्स्ट डाउट मुझे कोई बोला था 30 नंबर 30 31 सॉरी 31 सॉरी. हाँ तो एक बार बताओ तो 31 से पहले और कोई डाउट है? anyone who's got doubt in I mean before 31? anyone? नहीं है. See question number 31. You have 1 by e to the power x plus e to the power minus x. Now see, we can write e to the power minus x as 1 by e to the power plus x. Is this okay everyone? Now let us take LCM here, okay? So you get, what is the LCM of 1 and e to the power x? It is e to the power x. ये हो जाएगा e to the power x का whole square. कैसे? Because e to the power x into e to the power x can either be written as e to the power 2x or e to the power x whole square. Now the question is why I am writing in this form. I am writing in this form because just note down after this step I will explain you why. ये ऊपर चला गया न्यूमरेटर. Now why we are writing in this form? दोनों का मतलब सेम है because further power gets multiplied तो ये 2x ही होगा. But why are we writing in this form? Because ddx of e to the power x is equals to what? E to the power x. I repeat, ddx of e to the power x is equals to e to the power x. So that's why I'll substitute e to the power x with a variable t. Let us differentiate now. Now e to the power x gets cancelled, है ना? यहाँ पे t लग गया तो ये t square हो गया और dx हो गया 1 by e to the power x dt. This gets cancelled.
बचा 1 by t square plus 1 dt. And what is integration of 1 by 1 plus t square? It is tan inverse t. और जहां पे t है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? e to the power x. Copy it fast. If you have anything to ask, please ask कि क्यों ऐसा, क्या प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी अगर चीज तुमको क्लैरिफाई करना है, प्लीज डोंट हेजिटेट आस्क रिगार्डिंग दिस समय. अभी की केस हम बोर्ड पे है. यस, you can copy down and you can clarify your doubts. Yes. एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस जगह पे मैं टी लगा दूं, सपोज देखो एक ही बात है ना, देखो तो ये दोनों सेम चीज है, तो कैंसिल ही तो होगा. एक बात बताओ, e to the power x equals to t और e to the power x by t क्या होगा? मान ही तो मैंने कट ही तो जाएगा बिकॉज़ दोनों सेम. मैं पूछूं कि a by b क्या होगा? अगर a equal to b है तो 1 होगा. कैसे? a equal to b है तो दोनों कैंसिल हो गया, 1 हो गया. एग्जैक्टली सेम. यस. ये होगा. कौन सा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2? यस, टेल मी वन सेकंड. बताओ फिर से. हाँ, t by t square plus कैसे है? जस्ट अ मिनट. t by t square plus कैसे है? यहाँ पे t लगाया तुमने तो ये तो अभी है ना, ये dx का वैल्यू क्या है? 1 by e to the power x dt. तो कैंसिल हो जाएगा. कैसे? लेकिन यहाँ पे होगा कैसे वो तरीका? ये तो 1 by t square plus 1 है. इसका डेरिवेटिव ऊपर है ही नहीं तो होगा कैसे? उसके लिए तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होना चाहिए ना. लेकिन यहाँ पे तो ऐसे है ही नहीं, 1 by t square plus 1 है. क्यों करेंगे हम लोग ऐसा? आई कैन नॉट गेट इट. मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्यों करेंगे. ठीक है ना, ये तो इतना ही है तो इतना मैम क्यों करेंगे? यस स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट डाउट 31 के बाद. नेक्स्ट 38. अच्छा 58 के पहले और कोई डाउट नहीं है? यस. यस 44 से पहले और कोई डाउट? एनीवन? करेक्ट आंसर तुम्हारा, हमको पता है तुमने क्या किया. जस्ट अ मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ. 44 से पहले और कोई डाउट है किसी का? नहीं है. 44 ना देखना एक बार. So we have 1 plus tan x divided by 1 minus tan x. Now see, obviously अगर तुम देखो तो ये सब देखने के बाद, ये क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है कि क्यों ना इसको लिख दे tan of pi by 4 plus x. Am I correct? And you are 100% correct, कोई दिक्कत नहीं. बट इससे आंसर मैच नहीं करेगा. देखना एक बार. अगर मान लो मैं इस पूरा को अज्यूम करता हूं x, तो देखना एक बार. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x? इट इज माइनस log ऑफ mod cos x. और उसके बाद जिसको उन्होंने अज्यूम किया था, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1. क्यों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1. सो व्हाट इज 0 plus 1? इट इज 1. If you multiply 1 to this function, there will be no change. So this is the answer. But this answer will not match with the answer given in the book. अगर मान लो मैच करवाना है, सपोज करवाना है, तो कैसे होगा? जैसे क्या मैं इसको tan को sin by cos लिख सकता हूँ? I can write tan function as sin x by cos x, sin x by cos x. Now let us take LCM. So we have cos x plus sin x by cos x, cos x minus sin x by cos x. Cos x gets cancelled, and we are finding that we have cos x plus sin x by
cos x minus sin x. Now what we can do? We can substitute this denominator with t. Why? Because cos x minus sin x का डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट है माइनस कॉमन लेने के बाद देखिएगा वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है. See, cos x minus sin x की जगह t लगा देना. न्यूमरेटर में cos x plus sin x है और dx की जगह पे 1 by minus of sin x plus cos x. ये और ये कैंसिल हो गया. माइनस बाहर आ गया. 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod t. जहां पे t है वहां पे हम क्या लगाएंगे? cos x minus sin x. एक और चीज मॉड के अंदर cos x minus sin x लिखो या sin x minus cos x लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है. So I hope you have understood both the ways, but with the first method answer will not match. The second method answer will match with the answer in the book. Copy down first. हाँ हाँ obviously मैं देखो जो भी मेथड है मैं बताऊंगा इनकरेक्ट अगर बताऊंगा भी तो मैं तो बोल ही दूंगा. होता है ना कभी कभी ये गलत है मैं बोलता हूँ यार दोनों करेक्ट है. गलत क्यों? Yes, students now after 44, tell me the next doubt. 58 I heard, but before 58 and between 54, any more doubts? Anyone? नहीं है तो फिर 40 मैं 58 बताता हूँ. अच्छा एक बार बस मुझे बता रहे हैं लास्ट क्लास में क्या मैंने ये सब चीज कराया था? जस्ट आंसर मी वन बाय वन ऑफ यू. जैसे कि रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना टी स्क्वायर से, ये सब चीज बताया था भाई, याद करो. अच्छा ठीक ठीक. मतलब उनको क्या करना है मुझे समझ में आ गया. ओके ओके नाउ लेट मी कंप्लीट नंबर 58 and then we'll start new topic today. I mean topic वही है थोड़ा है. Everyone's copied? एक क्लास के बाद फॉर्मूला क्या चीज का? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो किसको चाहिए? अच्छा फर्स्ट क्लास तुम नहीं था प्रेजेंट? तुम हमको ध्यान दिया रहा. नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा शशांक. मैंने वीडियोस में भेजा ही था तो सारा. तो वो फर्स्ट अच्छा ठीक है उसमें फॉर्मूला में, लेकिन जो पीडीएफ है पीडीएफ में तुम्हारा फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है. मैंने उसका मैंने जो है ना तुम देखो वीडियो को पॉज करके देखना सारा उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, या मैं किसी को बोल दूंगा भेज देगा तुमको. कोई एग्जाम क्लास के बाद फॉर्मूला ग्रुप में भेज देना सबसे बेस्ट है वो देख लेंगे. नाउ नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. Now I want your attention here everyone. See, you cannot integrate this function in this form in the denominator. So how to integrate this type of integrand? Let us rationalize and then express it into integrable form. So let us rationalize this first.
Okay, let us rationalize. We have in the numerator x plus a whole to the power half minus x plus b whole to the power half divided by what is a plus b into a minus b? A plus b into a minus b is a square minus b square. It is a square minus b square. Now let us eliminate the bracket here, okay, in the denominator. If you will see स्क्वायर में कट जाएगा और अगर ब्रैकेट कटा हो तो देखना तुम्हारा x कैंसिल हो जाएगा. So what is left? A minus b 1 by a minus b बाहर रख करके और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना. ठीक है. Now what is integration of x plus a whole to the power half? Let us assume x plus a as x first. Now what is the formula of integration of x to the power n? It is x to the power n plus 1 by n plus 1 into जिस पार्ट को हमने एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1. इफ यू मल्टीप्लाई देयर विल बी नो चेंज. पता है मैं क्या करूंगा इस पूरा पार्ट को x एज्यूम कर लिया. ठीक है. उसके बाद x एज्यूम करके हम लोग x टू द पावर n का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n? इट इज x टू द पावर n plus 1 by n plus 1 into जिसका हमने जिस फंक्शन को हमने अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल क्या होगा 1. इफ यू मल्टीप्लाई देयर विल बी नो चेंज. And finally we find that I becomes half plus 1 becomes 3 by 2. So we have x plus a whole to the power 3 by 2 minus twice x plus b whole to the power 3 by 2 by 3 into a minus b. कौन सा 20 या 15 9 हाँ एकदम सेम. अच्छा उसके बाद लास्ट होमवर्क क्या था 62 ना 62 वाज द लास्ट वन. 61. अच्छा 60 और 61 में डाउट है किसी का? Anyone has got doubt in number 60 and 61? Anyone? अब आगे देखना एक बार. अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. वेट करके कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करके. Now I'll start from 63 onwards. Okay? ध्यान रखना. हो गया? Now see everyone. Now let us see question number 63. Okay, ध्यान देना. See everyone. Now अगर ये सम में देखो एक बार ध्यान से x to the power 5 के जगह पे अगर मान लो x स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था इस सम. बिकॉज अगर मान लो x स्क्वायर होता तो हमको क्लियरली दिख रहा था कि 1 प्लस x क्यूब को डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट है वो न्यूमरेटर का के ऊपर मतलब सॉरी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा वो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे इस समय ऐसा नहीं है. क्या है यहाँ पे
x to the power 5। तो ध्यान से नोट करना इस समय हम लोग क्या करने वाले हैं। Now listen few things very I mean carefully everyone। इसको तुम लोग इग्नोर मत करना और इसको एकदम ध्यान से सुनो। क्या है वो पॉइंट? इंटीग्रेशन में ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा मतलब मैंने देखा है सम्स को, मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन, मेरा एक तरीका है करने का और मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ क्या, कि अगर मान लो इंटीग्रेशन में सपोज जितना भी लॉजिक है सारा लॉजिक फेल हो जाए, मतलब जो भी तुमको लॉजिक मैंने बताया कि डिवाइड करना डिग्री बड़ा या बराबर है तो, और मान लो सब्स्टिट्यूट करना, ये सब चीज बताया ना तुम लोगों को, अगर मान लो ये सारा कुछ काम ना आए तो क्या करना? लिसन हियर, इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कौन सा पार्ट है बताओ तो, कैन यू एक्सप्लेन मी? इस पूरा इंटीग्रल में सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कौन सा पार्ट है बताओ, स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, कौन सा है बताओ तो एक बार। यस, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, देखो ये चीज। तो हम लोग क्या करेंगे नोट डाउन, हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी स्क्वायर से क्यों? बिकॉज अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। सम सिंपल हो जाएगा। मतलब कोशिश करना कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आए वो एकदम सिंपल फॉर्म है, ठीक है ना। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स को टी स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। देखो इसका क्लियर मतलब बताएंगे एक बार, पूरा सम को ध्यान से नोट करना। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट इज ddx of 1 plus x cube? It is 3x square. What is ddx of t square? It is 2t into dt by dx. So we find that dx is equals to 2t by 3x square into dt. Alright everyone? So I becomes x to the power 5 remains as it is. 1 plus x cube को हम लोग t square से रिप्लेस कर सकते हैं और dx के जगह पे 2t by 3x square रिप्लेस करना। What is square root of t square? It is t. So this t and this t gets cancelled. 2 by 3 constant में बाहर आ जाएगा। What is x to the power 5 by x square? It is x cube. But please note down one thing, that if you are substituting this in terms of मतलब with t, I repeat, if you are substituting 1 plus x cube with t, और अगर मान लो तुम लोग यहाँ पे dx को dt में रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे पूरा फंक्शन जो है वो t में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? t में। अगर मान लो तुम लोग x क्यूब में रख के इंटीग्रेट करेगा you will get 0 because logically it is incorrect। बिकॉज अगर ये dt है तो ये ft होना चाहिए। समझ में आया? तो अगर ये dt है तो ये फंक्शन ऑफ t होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह पे यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब के जगह एक्स क्यूब का हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। रिपीट, using this 1 plus x cube equal to t square, I'll find out the value of x cube in terms of t. So tell me what is the value of x cube in terms of t? It is t square minus 1. Now let us separate and integrate the integral. Okay, इस पूरा को हम इंटीग्रेट करते हैं। 2 by 3 t square dt minus 2 by 3 integration of 1 dt. Now what is integration of t square? It is t cube by 3 और and integration of 1 dt is how much? It's t. उसके बाद फाइनली जहां पे t है, अगर मान लो 1 plus x cube t square है तो फिर t का वैल्यू क्या होगा? t का वैल्यू हो जाएगा 1 plus x cube whole to the power half। I repeat, अगर 1 plus x cube t square है तो फिर t का वैल्यू क्या होगा? 1 plus x cube whole to the power half। Is this clear? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा and this is the answer। और see पूरा लॉजिक एकदम देखो इसके ऊपर, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, इस पे लॉजिक क्या ध्यान देना। लिसन हियर,
यू हैव टू कीप इन माइंड टू थिंग्स इन योर माइंड, ओके? दो चीज को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। जहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। पहला तो मैंने बताया क्या कि तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किस इंटीग्रेंड को, अगर मार्क नहीं हो रहा सब, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उस इंटीग्रेंड को सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए। तो एक बात बताओ, सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए सिंपल पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे या कॉम्प्लेक्स पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स पार्ट को। बट कॉम्प्लेक्स पार्ट को अगर तुम टी से सब्स्टिट्यूट कर दिया कोई फायदा नहीं होगा, वापस रूट में आ जाएगा। तुम बताना अगर हम यहाँ पे टी से सब्स्टिट्यूट करते तो वापस से रूट रह जाता कि नहीं? तो क्या फायदा होता सब्स्टिट्यूट करने का? इसलिए मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर लिया, नंबर 1 रीजन। सेकंड रीजन ध्यान देना, x to the power 5 को क्या मैं x क्यूब into x स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखो देखो, नाउ ट्राई टू थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा एकदम ध्यान से देखो, ओके? दिमाग को ठंडा रखो, एकदम ध्यान से स्टेप्स देखो। व्हाट इज dx of 1 plus x cube? इट्स 3x स्क्वायर। हो क्या रहा है देखो एक बार कि ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा देखो, और x क्यूब बच जाएगा। देखो यहाँ पे x क्यूब है, जिस एक्सप्रेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहां पे वापस से x क्यूब है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव से ये कैंसिल हो गया, और जो x क्यूब बच जाएगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ t रिप्लेस कर देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब? t स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? तो लॉजिक समझ में आया? तो तुमको दिमाग में दो चीज को रख के चलना पड़ेगा। पहला जो मैंने बोला कि हर सम का ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन का ये नहीं होता है कि डिफरेंशिएट करके देखना कि जो रिजल्ट आ रहा है उस इंटीग्रल में प्रोडक्ट फॉर्म में है या नहीं। ये सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन में जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हमारे साथ में ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जब ये चीज काम नहीं कर रहे ना तो ओके फाइन, हम लोग क्या चीज देखेंगे, उस इंटीग्रल में सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट टी स्क्वायर से, व्हाई? बिकॉज़ सम सिंपल हो जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, सिंपल बनाने के साथ साथ क्या हो रहा है, दूसरा चीज ये हो रहा है x टू द पावर 5 इज x क्यूब इनटू x स्क्वायर, देखो कैंसिल हो गया x स्क्वायर, और x क्यूब जो बच गया उस जगह पे हम लोग t स्क्वायर माइनस 1 रिप्लेस कर, एंड देन इंटीग्रेट। इज दिस ओके एवरीवन? यस, आई होप इट इज क्लियर। एवरीवन कॉपी डाउन? And after copying this sum, everyone must try sum number 64 and 65. 64 and 65 both the questions, and 69, 64, 65, 69 three sums. Hurry up. Questions नहीं है, दिया है तो मैंने व्हाट्सएप किया है तो मैंने शायद। आर्य सवाल का ही तो है ये। अच्छा एक काम करो ना, कोई एक जान, दोनों अपने अपने ग्रुप से, एक एसएफ फ्रूट और एक क्या नाम है, इधर है पंजाबी पढ़ा इस्कॉन मंदिर ग्रुप से एक एक जान ना, ये पेज 623 का ये जो फुल पेज है ना, एक बार इसको व्हाट्सएप कर दो तो, ओके? या मैं नहीं होगा तो बोर्ड पे भी लिख दूंगा मैं, लेकिन बाकी एक बार फिलहाल तुम लोग कर दो तो। I'm writing question on the board, okay? Sixty-five, 64, 65 and 68, 69 sorry। एक बार सबको ये तीन सम जल्दी से।
So have you done the first question, everyone? 64. So how you have done? Can you just explain me? सही है. 1 + x को हम लोग क्या चीज से सब्स्टिट्यूट करेंगे? टी स्क्वायर से. 1 + x, यस. उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग. उसके बाद फिर आई हो जाएगा x. 1 + x की जगह टी स्क्वायर आएगा. Square root of t square is t. This t and this t gets cancelled. Two constant बाहर आ गया. बचा x dt. But I cannot write in terms of x because this is dt. तो ये पूरा acting होना चाहिए. इसका वैल्यू क्या होगा? t square minus 1. Integration of t square is t cube by 3 and integration of 1 dt is how much? b. Alright everyone. And if 1 plus x is t square, the value of t will be 1 plus x whole to the power half. Is this okay? Now I'll show you this sum one more method, okay? Like without substitution. ये same sum को हम लोग बिना substitution का भी हम लोग कर सकते हैं. एक बार कॉपी कर लो, जिसको कॉपी करना. और everyone listen here. जब मैं जितना भी methods बता रहा हूँ, integration में स्पेशली सारा methods को ध्यान से नोट करना. And try to learn all the ways. ये नहीं कि हो गया सब, अब क्यों देखेंगे दूसरा मेथड. See the alternative way, everyone. Now just try to see it, everyone. मैं क्या कर रहा हूँ देखना है. ये 1 plus x है, ये x है. यहाँ पे न्यूमरेटर में मैं क्या करूँगा? 1 plus x लिख दूंगा. Now 1 plus x में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर x आएगा? बताओ तो. What is to be added or subtracted to 1 plus x so that you get x again? Tell me. -1. Okay. Okay. 1 plus x minus 1 is how much? x. ध्यान रखना नीचे जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर में, उसको पहले लिख दिया. -1 करने से वापस x आ जाएगा. अब देखो, इसको इससे स्प्लिट करना और 1 को रूट ओवर 1 plus x से स्प्लिट. उसके बाद 1 plus x by square root of 1 plus x. जैसे कि x by root x, root x हो जाएगा. x by root x क्या होगा? root x होगा ना, क्योंकि x को हम क्या लिख सकते हैं? root x into root x. ठीक है. तो हम लोग 1 plus x by root over 1 plus x को square root of 1 plus x लिख सकते हैं. ठीक है ना. और इसके बाद अलग अलग करते हैं. Now who can tell me how to integrate 1 plus x का root? You can write this as 1 plus x whole to the power half. And you can write this as 1 plus x whole to the power minus half. इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 plus x to the power, sorry, x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करो. x to the power n plus 1 by n plus 1. उसके बाद जिसको हमने अज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1. जिसको हमने अज्यूम किया था उसका ddx क्या होगा? 1. 1 का रेसिप्रोकल 1. if you multiply there will be no change. So you have 1 plus x whole to the power half plus 1, that is 3 by 2 by 3 by 2. Half by half. Okay.
So this is alternative where I am not substituting. बिना substitute किए मैं इसको कर रहा हूँ. Sum number 65 try करें. Yes, one by किसको बताओ? 1 by x कहाँ है? हाँ 1 by x नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? Because 1 by x का ये जो फॉर्मूला है ना x to the power n का ये सारे केस में अप्लाई हो सकते हैं except when the power of x is not -1. जब n का वैल्यू -1 होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है log mod x. और मैंने बताया भी था फर्स्ट क्लास में कि log mod ये अनडिफाइंड हो जाएगा. x to the power जब -1 होगा we never apply this formula. इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिख सकते. 1 by 1 plus x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग? log of mod 1 plus x ये होगा. So everyone do number 65 now. So students, we all have number 65. So can you just tell me your answer? क्या आंसर बताओ? हाँ वो आंसर भी सही है. और किसी का कुछ और आंसर है? एनीवन? हाँ करेक्ट है. वेरी गुड. वो भी करेक्ट है. tan इनवर्स में भी आएगा आंसर. आ सकते हैं. दैट इज आल्सो करेक्ट. sec इनवर्स में भी आंसर करेक्ट है. दोनों ही करेक्ट है. नाउ सी बोथ द वेज. आई विल शो यू बोथ द वेज. एक जो मैंने बताया उसके हिसाब से तुम x टू द पावर 4 1 को t स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है. x टू द पावर 4 1 को t स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब. t स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt by dx. तो dx क्या हो जाएगा? t by 2x cube into dt. So I becomes how much? x to the power 4 minus 1 की जगह पे क्या लगेगा? t square. dx की जगह लग जाएगा t by 2x cube dt. What is square root of t square? It's t. ये t और ये t कैंसिल हो गए. समझ में आया? तो square root of t square is equals to how much? t. तो ये t और ये t कैंसिल हो गए. हाफ कांस्टेंट है बाहर आ गया. What is x cube into x? It is x to the power 4. और जो x to the power 4 बच गया देखो ये रहा. x to the power 4 की जगह पे t square plus 1 रिप्लेस. We can replace at the place of x to the power 4 t square plus 1. Now tell me what is integration of 1 by t square plus 1? It is tan inverse t. और जहां पे t है वहां पे तो क्या रिप्लेस कर देंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x to the power 4 minus 1. All right everyone. The alternative है पर ध्यान देना जिससे आंसर बुक से मैच करेगा. एक बार पहले कॉपी कर लो जिसका नहीं हो. ऑल्टरनेटिव है जिससे आंसर बुक से मैच करेगा वो भी मैं बता देता हूं.
See, the alternative way of solving this particular sum. See, what I am doing in this sum is, I can write h to the power 4 as x square whole square. What is the reason? Just note down here. This is very very important line. Now tell me what is ddx of x square? It is 2x. है कि नहीं? ऊपर 2x है नहीं. हम लोग क्या करेंगे नोट डाउन. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे. अब क्या होगा इसे देखना एक बार. अगर हम लोग x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसका डेरिवेटिव से जो 2x आएगा वो ये कैंसिल हो जाएगा. देखो ध्यान देना. अगर आप x स्क्वायर को t ले लें तो उसका डेरिवेटिव से जो आएगा रिजल्ट ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा. चेक करो एक बार, फॉर्मूला है, चेक कर लो. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर विद t. So I becomes how much? 2x cancel हो गया, बचा 1 by twice t square root of t square minus 1. Now tell me ये किसका फॉर्मूला है? देखो 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 तो ये किसका फॉर्मूला है बता सकते हो तुम? चेक कर लो फॉर्मूला कॉपी में. ये sec इनवर्स t का फॉर्मूला है और उसके बाद जहां पे t है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? t के जगह पे x को रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज वन आंसर. दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का आंसर का फॉर्म्स अलग अलग है, मतलब एक ही है. नाउ ट्राई नंबर 69. अच्छा तुम लोग का आवाज एक बार कोई बोलो तो ऑडिबल तुम लोग का नहीं है क्या? आवाज या ठीक. Now everyone, try number 69 and then I'll give you a few questions more on the board. You'll try those sums also. $79, उसके बाद $83, so everyone try these two sums. 69 के बाद 79, 83. हरिया try करो just for आधा एक मिनट.
यस, इसके बाद 79 था। हुआ 79 सबका? यस एवरीवन। क्या बात है, तुम लोग से नहीं हो रहा है क्या सम सीबीएसई वाला लोग से? यस। ओके ठीक है। क्या बात है, आज आज तुम लोग को कम समझ में आ रहा है क्या सबको ही को? दोनों तरफ का बैच को ऐसे अप्रोड और पंजाबी पढ़ा, रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 79 हुआ सबका? हम्म। जब मैं पूछूं तो बोलते रहो, नहीं तो ऐसे लगेगा कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, कि इधर रूम में कोई नहीं है, बस कैमरा को देख करके। सो एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड समटाइम व्हेन आई से लाइक हैव यू डन, कुछ हाँ या ना में रिस्पॉन्ड करो। एक जान सबको नहीं करना है बट। अच्छा एक बात बताओ, 69 नंबर सम में बिना सब्स्टिट्यूशन का कोई बता पाएगा मुझे? देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है। यस एनीवन? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी विदाउट सब्स्टिट्यूशन स्टेप्स? यस, कोई दिमाग लगा सकता है बिना सब्स्टिट्यूशन का 69 कैसे होगा? कोई नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ। सम नंबर 69 बिना सब्स्टिट्यूशन का कोई बता सकता है कि बिना सब्स्टिट्यूशन का कैसे होगा, क्यों स्टेप्स? ध्यान देना एक बार, बिना सब्स्टिट्यूशन का कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखो देखो ध्यान देना, यहाँ पे 3x माइनस 2 है और यहाँ पे x है। मैं क्या करूंगा देखना एक बार, आई मल्टीप्लाई 3 एंड डिवाइड इट बाई 3। समझ में है पहला चीज? दूसरा पॉइंट, यहाँ पे 3x माइनस 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 करो और ये हटाने के लिए प्लस 2 करो। देखो इससे फायदा क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार इसको ऐड करके देखो, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x है यहाँ पे 3x है, देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, मतलब सेम है, मतलब ये इंटीग्रेंट और ये इंटीग्रेंट सेम है। अब ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 2 होल टू द पावर हाफ। ठीक है देखो, 3x माइनस 2 होल टू द पावर हाफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना। नाउ व्हेन बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। समझ में आया? तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो जब पावर ऐड होगा तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, और उसके बाद दोनों को अलग अलग लिख करके इंटीग्रेट, मतलब दोनों को सेपरेट करके सेपरेट। दिस इज क्लियर एवरीवन? आई थिंक इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। तो 79 ट्राई करो, 79 कोई है जिससे नहीं हुआ? एनीवन हियर इन द ग्रुप? क्या नहीं हुआ? 79 हो गया, सबसे हो गया? ओके ओके ठीक है, करो ट्राई।
79 अगर किसी का डाउट है तो यहाँ देख सकते हैं। साइन क्यूब एक्स स्क्वायर को साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिखेंगे हम लोग पहले। इसके बाद अब साइन एक्स स्क्वायर को टी में पुटिंग साइन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव 2x, तो dx हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय सॉरी dx हो जाएगा 1 बाय 2x into cos x square, so I becomes sin x square की जगह पे t लगा देना तो ये t क्यूब हो जाएगा, x जैसा है वैसे रह जाएगा, cos x square भी वैसे ही है, और dx की जगह पे 1 by 2x cos x square रिप्लेस कर दो, cos x square कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, हाफ कांस्टेंट है बाहर आ गया, and what is integration of t cube? Integration of t cube is how much? T to the power 4 by 4 plus c, और जहां पे t है वहां पे sin x square रिप्लेस। Is this clear? Now have you done number 83? 83 नहीं हुआ? 83 में मैं हिंट दे रहा हूं, देखना एक बार। sin 2x को 2 sin x cos x लिखो, ठीक है? sin 2x को 2 sin x cos x, और जो a plus b cos x है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना। देखो तुम सब्स्टिट्यूट करके खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है, एक बार ट्राई करो तुम लोग, आई एम 100% श्योर दैट हो जाएगा। मैंने क्या बोला फिर से सुनो एक बार, sin 2x को 2 sin x into cos x लिखना, पहला पॉइंट। उसके बाद a plus b cos x को t ले लेना, तुम देखो एक बार हो जाएगा सब। मैं देखता हूं ना क्या रीजन है sin 2x को 2 sin x cos x लिखने का, देखो ध्यान रखो। बिकॉज अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ध्यान रखो, तो cos x का डेरिवेटिव से sin x कैंसिल हो जाएगा, देखो कैंसिल हो गया, और जब cos x बच जाएगा तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। याद करो जो पहला समीकरण आज कर रहे थे, x to the power 5 by square root of 1 plus x cube, इसको सब्स्टिट्यूट क्यों करने बोला था? इसका डेरिवेटिव से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो x क्यूब बच जाएगा उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे ये वाला समीकरण भी ठीक वैसे ही लॉजिक है। Putting a plus b cos x equals to t. See, sin x gets cancelled. Note down. अच्छा मैं लिख देता हूँ पहले। a plus b cos x की जगह t लग जाएगा, t स्क्वायर हो गया। जहाँ पे dx है वहाँ पे 1 by minus b sin x आ जाएगा। sin x gets cancelled. minus 2 by b बाहर आ गया, कांस्टेंट है। और जो cos x बचा है, cos x की जगह पे देखो यहाँ पे cos x का वैल्यू रिप्लेस कर देना। Now tell me what is the value of cos x? It is t minus a by b. The value of cos x is t minus a by b. Whole thing divided by t square. ठीक है? b बाहर आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। Now let us split with the denominator t by t square. Now t by t square means 1 by t.
माइनस माइनस प्लस 2a by b square, ओके, माइनस माइनस प्लस 2a by b square और 1 by t square को t to the power माइनस 2 लिख सकते हैं। 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t, और t to the power माइनस 2 का क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 by माइनस 2 प्लस 1, कॉपी कर लो और सिंपलीफाई कर लो। कॉपी करनी पड़ेगी। Now say next. Everyone note down. ये लास्ट टॉपिक है आज का, ध्यान रखना। एक बात बताओ, ये टाइप एक बार लिख लेना, f dash x by fx. Now what is this f dash x by fx? Note down everyone. अगर मान लो सपोज यू गेट इंटीग्रेट लाइक दिस, लिसन, सपोज मान लो न्यूमरेटर में है 2x और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक बात बताओ तुम लोग, ये इस फॉर्म का मतलब क्या है, लिसन, अगर पूरा डिनोमिनेटर में जो भी चीज है उसका अगर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होता है, रिपीट, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका अगर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अगर एग्जिस्ट करता है तो आंसर क्या होगा, log of mod fx। जैसे व्हाट इज ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, कैन यू टेल मी, बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। क्या न्यूमरेटर में 2x है, देखो तो एक बार, x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, इसका मतलब ये कैसा फॉर्म है, देखो तो एक बार, इस फॉर्म है, देखो एक बार, f dash x by fx के फॉर्म में है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, log of mod fx हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, log of modulus x स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर स्टेप्स दिखाना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग लास्ट क्लास में अगर तुम देखो या आज तक जो भी अभी सब किया तुम लोग तो सब्स्टिट्यूट करके ही तो दिखा रहा था, लेकिन अब तुम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग को पता चल गया, पूरा क्लियर आइडिया हो गया कि कैसे हो रहा है, अब तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ में आया, तो बस क्या करना, जब भी लिखेगा तुम लोग बगल में फॉर्मूला को नोट कर देना, ओके, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज वेरी मच क्लियर। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 by t आ जाएगा, 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t। नाउ कैन यू टेल मी इसका आंसर क्या होगा, now tell me what will be the answer of this integrand, yes anyone, yes anyone, yes, it is log of mod x plus cos square x। now why log of mod x cos square x, because ddx of x is 1, cos square x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का होल स्क्वायर लिख के और फिर n x टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, और फिर ddx of cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x। तो देखो एक बार, प्लस माइनस माइनस, व्हाट इज 2 cos x into sin x, it is sin 2x,
तो समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां भी ऐसा फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी इंटीग्रेंट अगर ऐसा फॉर्म में हो तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अब बताओ तो ये वाले सम में क्या करना है, व्हाट इज आंसर बताओ। 2 है, ठीक है, दिस इज 2 log of mod b। वेरी गुड। सी 2 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। ऊपर x स्क्वायर है, 3 तो नहीं है ना, तो क्या करो तुम लोग ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करो। अब ये कैसा फॉर्म में आएगा, f प्लस x बाय f x फॉर्म में, तो आंसर क्या होगा, log of x। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसके बाद जो है आज का लास्ट लास्ट समय है, और उसके बाद होमवर्क काफी मिलेगा तुम लोग को, वर्कशीट से होमवर्क मिलेगा।